Assalamu alaikum. You are watching Camcore with Nadia Tahir. Our today's topic is column chromatography. In this topic, we will study about its definition, principle, its stationary phase and mobile phase, its column, and the applications. What is column chromatography? Column chromatography separates substances based upon differential adsorption of the compound on the adsorbent as the compound moves through the column. What does it mean? क्रोमेटोग्राफी है ये क्या करती है, सब्सटेंसेस को सेपरेट करती है किस बेस पे, बेस्ड अपॉन डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन की बेस पे कि कोई कंपाउंड ज़्यादा एड्सॉर्ब हो रहा है या कम हो रहा है. कहाँ पे एड्सॉर्प्शन? ऑन द एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट पे. एड्सॉर्बेंट क्या है? इन दिस क्रोमेटोग्राफी और स्टेशनरी फेज इज टर्म्ड एज एड्सॉर्बेंट. कब होती है ये सेपरेशन? एज द कंपाउंड मूव थ्रू द कॉलम, जब कंपाउंड कॉलम के थ्रू मूव करते हैं, अप से डाउन मूवमेंट होती है, तब ये सेपरेशन होती है. Here the word compound indicates the sample. So we can say column chromatography एक separation technique है जो कि solute को differential adsorption की बेस पे separate करती है. Next, this method is a type of adsorption chromatography. ये adsorption chromatography का एक method है. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स बताई थी, उनमें से सेकंड टाइप है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. तो जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है इट बिलोंग्स टू एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी बिकॉज इट हैज सॉलिड स्टेशनरी फेज एंड लिक्विड मोबाइल फेज. Then what are the applications or what is the scope of this technique? This technique can be used on small scale as well as on large scale to purify the materials that can be used in future experiments. Means कि हमारा कोई experiment है, हमने करना है, उसके लिए हमें कोई chemical, कोई sample चाहिए but वो pure नहीं है, तो उसे purify करने के लिए हम column chromatography को use कर सकते हैं. After defining the column chromatography, let's have a look on its principle. It states solute adsorbs to the stationary phase reversibly and mobile phase competes with it for the position. Here the word reversibly is important. मीन्स के जो हमारा सोल्यूट है, जो सैंपल है, वो स्टेशनरी फेज पे एड्सॉर्ब होता है बट दैट एड्सॉर्प्शन कैन बी रिवर्स्ड. वो डीसॉर्ब भी हो सकता है. कैसे डीसॉर्ब होता है? बिकॉज जो मोबाइल फेज है वो compete करती है सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ पोजीशन के लिए. मोबाइल फेज वांट्स टू adhere on stationary phase. In this want, it replaces the solute particles which are already adhered to the stationary phase. कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक इलस्ट्रेशन से ले लेते हैं. ये हमारा कॉलम है, इट इज़ द स्टेशनरी फेज. इसके ऊपर हमारा सोल्यूट पार्टिकल से ये एडहियर हो गया. ठीक है, तो जब मोबाइल फेज फ्लो करेगी इट विल ट्राई टू एडहियर एंड रिप्लेस दिस सोल्यूट. मोबाइल फेज यहाँ पे एडहियर हो जाएगी और जो सोल्यूट है वो यहाँ से डीसॉर्ब होके कॉलम से रिमूव हो जाएगा. अब जितनी हमारे सोल्यूट की सैंपल की स्टेशनरी फेज के साथ एड्सॉर्प्शन और अफिनिटी स्ट्रॉन्गर होगी, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू रिमूव और इसका रिटेंशन टाइम ज़्यादा होगा. If our solute has less affinity for stationary phase, तो मोबाइल फेज उसे easily remove कर देगी and it will get out of column at shorter retention time. ये इसका प्रिंसिपल है. इसमें वर्ड आपने रिवर्सिबली जो है उसे माइंड में रखना है, इसे मिस नहीं करना, अदरवाइज ये सारी डेफिनेशन, सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा.
After principles, there comes the essential components of column chromatography. First one is the stationary phase. Stationary phase or adsorbent in column chromatography is solid. As I told you earlier, जो column chromatography है, it belongs to adsorption chromatography. So it is understood कि अगर ये adsorption chromatography है, इसमें stationary phase हमारी solid होगी. Additional point क्या है? Adsorbent. It is another word for stationary phase we use in the case of adsorption chromatography or column chromatography. Means कि हम stationary phase कहें या adsorbent कहें, both are same. Most common stationary phases that are used for column chromatography is silica gel and alumina. Silica gel is acidic in nature while alumina is basic in nature. So if we have acidic samples, we go for silica gel, and if we have basic samples, we use alumina. Beside these two, there is third option as well that was used in the past. It is cellulose powder. It has often been used in the past as stationary phase. Next are the properties of stationary phase. Particle size. First property क्या है? Particle size से related. Particle size should be in the range of 75 to 150 micrometer. इतना ही particle size होना चाहिए. इस range से अगर small हो या large हो, it will affect the separation efficiency and quality of the separation. ठीक है. नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू पार्टिकल्स. पार्टिकल का साइज इस रेंज में है. और सेकंड, पार्टिकल शेप शुड बी यूनिफॉर्म, इरेगुलर शेप नहीं होनी चाहिए. देन स्टेबिलिटी एंड इनर्टनेस ऑफ पार्टिकल्स, और स्टेशनरी फेज शुड बी स्टेबल एंड केमिकली इनर्ट. Third one is it should be colorless, inexpensive and readily available. अगर हमारी stationary phase colored होगी, it will be a great confusion to identify either the color belongs to solute or the stationary phase. मीन्स कि हमें विजुलाइज करने में मुश्किल होगी कि हमारे सोल्यूट की सेपरेशन कितनी हुई है, कहाँ तक पहुँचा है सोल्यूट, उसकी क्या फ्रैक्शंस हैं. इसलिए स्टेशनरी फेज को कलरलेस होना चाहिए. नेक्स्ट वन, इट शुड अलाउ फ्री फ्लो ऑफ मोबाइल फेज. स्टेशनरी फेज ऐसी होनी चाहिए कि मोबाइल फेज का फ्री फ्लो अलाउ करें. मीन्स के मोबाइल फेज को खुद से पास होने दे. ऐसा ना हो कि मोबाइल फेज को ब्लॉक कर दे और बिल्कुल नॉन परमिएबल बन जाए. Last property is it should be suitable for the separation of mixtures. Separations के लिए suitable होना चाहिए. ऐसा ना हो कि हम अपना sample ऐड करें और at the end कॉलम के दूसरे एंड से वो हमें as it is sample ऐसे ही मिल जाए, कोई भी separation, कोई भी fractions ना हो. तो it should be suitable for separation of mixtures. ये एक important property है. After that, here is the mobile phase. What is mobile phase? Mobile phase क्या होता है? Mobile phase or element is a solvent or mixture of solvents used to move the compound through the column. या तो ये solvent है या mixture of solvents है, जो क्या काम करता है, हमारे compounds को, means कि जो solute है, जो sample है, उसे कॉलम के थ्रू मूव करवाता है. अब जो हमारा सैंपल है उसे हम कॉलम की टॉप पे लोड करते हैं. वो एज इट इज तो डाउनवर्ड मूव नहीं करता, उसे कॉलम के थ्रू मूव करने के लिए कुछ पुश चाहिए, फोर्स चाहिए. दैट पुश इज प्रोवाइडेड बाय द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट हम कॉलम की टॉप से ऐड करते हैं. एज द सॉल्वेंट मूव डाउन, इट कैरीज द सैंपल अलोंग विद इट. What should be the properties of this solvent or mobile phase? It should completely dissolve sample. जो हमारा sample है वो इसमें completely soluble होना चाहिए. Next, कुछ common mobile phases की examples हैं जिन्हें हम use कर सकते हैं, वो chemicals हैं. इसमें है हेक्सेन,
dichloromethane, ethyl acetate, acetone, and methanol. These are in the increasing order of polarity, means hexane is the least polar and methanol is the most polar in these examples. उसके बाद मोबाइल फेस की कुछ इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इससे रिलेटेड. The solvent mean mobile phase. The solvent which adsorb weakly are poor elements, while the solvents which adsorb strongly are the good elements. What does it mean? इसका क्या मतलब है? वीकली एडसॉर्ब का क्या मतलब है कि वो मोबाइल फेजेस जिनकी अफिनिटी स्टेशनरी फेज के लिए अच्छी नहीं है, ज़्यादा नहीं है, दे आर पुअर एलिमेंट्स, मीन्स कि वो इतना ज़्यादा सैंपल एल्यूट आउट नहीं करवाती. जबकि वो सॉल्वेंट्स विच एडसॉर्ब स्ट्रॉन्गली, जिनकी स्टेशनरी फेज के साथ अफिनिटी ज़्यादा है, दे आर गुड एलिमेंट्स, मीन्स कि वो सोल्यूट को रिप्लेस कर देती हैं, खुद एडसॉर्ब हो जाती हैं और ज़्यादा सैंपल या ज़्यादा सोल्यूट को कॉलम से रिमूव करवाती हैं, एल्यूट आउट करवाती हैं. इससे क्या हम रिजल्ट निकाल सकते हैं? व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस? Poor elements show longer retention time because they have less affinity to replace the solute on the stationary phase, while the strong elements show shorter retention times. नेक्स्ट जो हमारी मोबाइल फेज है उसकी कंपोजिशन की बेस पे थोड़ी सी डिस्कशन है, टाइप्स ऑफ एल्यूजन है. जो हमारी मोबाइल फेज है, इट कैन बी अ सिंगल सॉल्वेंट or the mixture of solvents. It can be single solvent or mixture of solvents. In a mixture of solvents there are further two types. First type है isocratic elution. In this elution the composition of mobile phase is kept constant throughout the process. जितना भी प्रोसेस है उसमें मोबाइल फेज की कंपोजिशन हम चेंज नहीं करेंगे. From start to end it will be same. That's why it is named as isocratic. Iso mean same. Second one is the gradient elution. जैसे gradient color होता है ना, it is shade from lighter to darker or darker to lighter. इसी तरह से gradient elution है. In this the composition of mobile phase is increased gradually. मीन्स के मोबाइल फेज में एक सॉल्वेंट को हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं इट इज द ग्रेडियंट एल्यूजन. उसके बाद पैकिंग ऑफ कॉलम. कॉलम को किस तरह से पैक करना है? व्हाट इज पैकिंग? पैकिंग बेसिकली मीन्स प्रिपेयरिंग द कॉलम फॉर द प्रोसेस और अप्लाइंग द स्टेशनरी फेज इन द कॉलम. मीन्स के कॉलम में हम स्टेशनरी फेज ऐड कर रहे हैं, उसे हम सेपरेशन के लिए रेडी कर रहे हैं. इट इज कॉल्ड पैकिंग. पैकिंग इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट मेथड इज द ड्राई पैकिंग. इन दिस मेथड ड्राई सिलिका और एलुमिना इज डायरेक्टली एडेड टू द कॉलम. हमारा जो स्टेशनरी फेज है पाउडर की फॉर्म में सॉलिड होगा, उसे हम कॉलम में ऐड कर देते हैं ड्राई कोई, एंड सॉल्वेंट इज अलाउड टू पास थ्रू इट, और उसके बाद सॉल्वेंट को पास करवाते हैं. इट इज द ड्राई पैकिंग. नेक्स्ट मेथड इज द वेट पैकिंग. इन वेट पैकिंग मेथड फर्स्ट अ स्लरी इज प्रिपेयर्ड. एक स्लरी बना लेते हैं पहले से ही. वो कैसे? यूजिंग एडसॉर्बेंट एंड मोबाइल फेज. मोबाइल फेज और एडसॉर्बेंट को किसी बीकर वगैरह में लेके उन्हें अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं, अच्छी मिक्सिंग करके. उसके बाद कॉलम को हम फिल करते हैं. आइदर वी यूज ड्राई पैकिंग और वेट पैकिंग. दोनों में से कोई भी मेथड हो, फर्स्ट कॉलम इज क्लोज फ्रॉम द अदर एंड. मीन्स के जो कॉलम का लोअर एंड है वहाँ से हम कॉलम को क्लोज कर देते हैं, कॉटन प्लग या फिल्टर कुछ भी यूज करते हुए. Up till now we have studied what is column chromatography, what's its principle, its stationary phase, its mobile phase, packing of the column. Now comes the procedure of column chromatography.
इन फर्स्ट स्टेप द कंपाउंड मिक्सचर मीन्स के जो हमारा सैंपल है that needs to be separated is added from the top of column without disturbing the top level. मीन्स कि जो कॉलम की पैकिंग हुई हुई है, जो स्टेशनरी फेस का टॉप लेवल है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना, सैंपल को बस वहाँ पे पोर कर देना है, मिक्सिंग नहीं करनी या कुछ भी ऐसा प्रोसेस नहीं करना. Then tap is turned on and the adsorption process on the surface of silica begin. Here silica indicates the stationary phase. कोई भी stationary phase होगी तो वहाँ पे adsorption का process start हो जाएगा. मीन्स आपने सैंपल ऐड किया, फिर टैब को ओपन कर दिया. कौन सी टैब? जो कॉलम के लोअर एंड पे है वो वाली टैब. Next, without disturbing the stationary phase, solvent mixture is added slowly by touching the sides of glass column. अब हमने कॉलम के साइड के साथ उसके एजेस से, लाइक ये हमारा कॉलम है तो यहाँ से हम पोर करेंगे, बिल्कुल सेंटर में. ऐसे नहीं करेंगे तो स्प्लैश हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगी स्टेशनरी फेस. साइड से स्लोली जेंटली अपनी जो मोबाइल फेस है उसे पोर करना है. इट कैन बी पोर्ड एज पर रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट. मीन्स जब तक आपकी सेपरेशन हो रही है आप थोड़ी थोड़ी ब्रेक से आफ्टर लिटिल टाइम मोबाइल फेस ऐड करते रहेंगे. उसके बाद टैब इज टर्न ऑन टू इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ कंपाउंड्स इन द मिक्सचर. हमने अगेन जो है मोबाइल फेस ऐड करने के बाद से दोबारा उसको रिज्यूम किया है, टैब ऑन कर दी है. The movement is based on the polarity of the molecule in the sample. अब ये मूवमेंट किस बेस पे हो रही है? पोलैरिटी की बेस पे. हमारी जो स्टेशनरी फेस है दैट इज पोलर, सो द नॉन पोलर कंपोनेंट्स मूव एट ग्रेटर स्पीड. जो नॉन पोलर कंपोनेंट्स हैं वो फास्टली मूव करेंगे बिकॉज दे हैव लेसर टू नो अफिनिटी फॉर द पोलर स्टेशनरी फेज, इसलिए वो उस पर एब्जॉर्ब नहीं होंगे. while the polar components will move slowly because they have attraction for the polar stationary phase. इस तरह से हमारी एल्यूजन हो जाएगी. जो सैंपल कंपोनेंट्स हैं दे विल कम आउट, नॉन पोलर विल कम आउट फर्स्ट एंड पोलर विल कम आउट लेटर. ये जो सारा प्रोसेस है इसे हम कहते हैं इल्यूजन. द प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट of sample components from the column is called illusion. Next एक illustration है जो कि एक्सप्लेन करती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस को. ये हमारा कॉलम है और स्टेशनरी फेस है, ऊपर हमने सैंपल लोड कर दिया है और ये हमने मोबाइल फेस ऐड की पिंक में और टैब को ओपन कर दिया. देन मोबाइल फेस ऐड करते रहेंगे तो ये सैंपल की सेपरेशन स्टार्ट हो गई. यहीं पे स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पे फ्रैक्शंस का डिस्टेंस बढ़ रहा है. एंड विद टाइम वन फेज वन कंपोनेंट विल बी सेपरेटेड एंड अदर विल स्टे. और इसी तरह से आफ्टर सम टाइम सेकंड फ्रैक्शन भी सेपरेट हो जाएगी. तो इसमें आपके लिए एक क्वेश्चन है, थोड़ी सी ब्रेन एक्टिविटी है. आपने बताना है द ग्रीन फ्रैक्शन इज पोलर इन नेचर और नॉन पोलर. ठीक है, ये रियल लाइफ से एग्जांपल है, इमेज है एक. इसमें ये जो ऊपर है सॉल्वेंट रेजर्वायर का शो हो रहा है आपको हाफ. ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ हुआ है, यहाँ पे देखिए इनमें डिस्टेंस कम है और विद टाइम ये डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है. और यहाँ पे येलो फ्रैक्शन बिल्कुल रिमूव होने वाली है कॉलम से और ये वाली स्लोली रिमूव हो जाएंगी. उसके बाद कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं कि किन फैक्टर्स के थ्रू हम अपने कॉलम क्रोमेटोग्राफी को मोर एफिशिएंट मोर बेटर बना सकते हैं, सेपरेशन को ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से उसे कंट्रोल कर सकते हैं. दीज आर द 5 फैक्टर्स. फर्स्ट वन इज़ द पोलैरिटी ऑफ स्टेशनरी फेज. हमारी स्टेशनरी फेज की पोलैरिटी क्या है, ये सेपरेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है. उसके बाद पार्टिकल साइज ऑफ स्टेशनरी फेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन सेपरेशन. देन पोलैरिटी ऑफ मोबाइल फेज, फ्लो रेट ऑफ मोबाइल फेज किस रेट से फ्लो कर रही है. फ्लो रेट और पार्टिकल साइज का जो है काफ़ी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अगर
फ्लो रेट जो है ज़्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता और सेपरेशन नहीं होती। जो हमारा फिफ्थ फैक्टर है दैट इज द टेम्परेचर ऑफ कॉलम। In the end, we will see some applications of column chromatography. It is used to isolate active ingredients. It is very helpful in separating compound mixtures. It is used to determine drug estimation from the drug formulations. मीन्स कि जो ड्रग है हमारे पास उसमें रियल ड्रग कंटेंट कितना है और एक्सिपिएंट्स कितने हैं. It is used to remove impurities, used to isolate metabolites from the biological fluids. If you have any questions, you can ask in the comment box. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching.